بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نوزت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو صحافت کے سفر کے بارے میں ہے جو ہم نے کل شروع کیا تھا کہ پاکستان میں صحافتی ارتقاء کیسے ہوا، وہ کیا ٹیکنالوجی تھی، وہ کیا چینجز تھیں جو قیام پاکستان سے اب تک صحافت میں استعمال ہو رہی ہیں اور متعارف ہو رہی ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ میٹیریل کس طرح چینج ہوا۔ پہلے صرف تحریک پاکستان کے حوالے سے اخبارات میں سارے کالم لکھے جاتے تھے، اداریے لکھے جاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد بہت سارے نئے موضوعات جو ہیں وہ اخبارات نے جو ہے متعارف کروائے، لوگوں کو بتایا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے کہ کیسے مواد کے ساتھ ساتھ فنی ترقی جو تھی اس نے بھی نئی راہیں کھولیں اور اخبارات نے نئی قسم کی تکنیکیں متعارف کروائیں۔ یہ جو ٹیکنیکس تھیں اس سے اخبارات بہت خوبصورت ہو گئے اور دل چاہتا ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ تو وہ ٹیکنالوجی جو آج کل اخبارات میں استعمال ہو رہی ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ پاکستان اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ وہ مشینیں، وہ طریقہ کار جو کہ مغرب میں رائج ہے اب پاکستان میں بھی آ گیا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اخبارات بھی انگلینڈ کے اخبارات کے ہم پلہ ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی اب بات کرتے ہیں۔ جو ٹیکنالوجی ہے یہ نیوز پیپر کی انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی پرنٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس سے اخبار کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے اور لوگ بڑے شوق سے اخبارات کو پڑھتے ہیں۔ اب اخبارات میں جو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے تو صرف چند ایک اخبارات تھے جو کہ خبر رساں اداروں سے سروس لیتے تھے، مگر اب بہت سارے اداروں کا قیام ممکن ہوا ہے۔ وہاں اخبارات کی مالی حالت بھی بہتر ہونے کی وجہ سے اخبارات ملکی اداروں کے علاوہ غیر ملکی اداروں سے بھی خبریں حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح مختلف ذرائع کی بدولت خبروں کو جلد از جلد ترسیل بھی ممکن ہو گئی ہے۔ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے ملک کے دنیا کے کسی کونے میں اور فوراً جو ہے ہمارے پاس اس کا کلپ آ جاتا ہے، اس کی ویڈیو آ جاتی ہے، اخبارات میں اس کے بارے میں خبریں ہو جاتی ہیں۔ تو اخبارات جو ہیں تازہ ترین بین الاقوامی، ملکی، علاقائی اور مقامی خبریں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا یہ آپ کلپ دیکھ رہے ہیں، اس سے جو اخبار کا میک اپ ہے اس میں بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، اس میں بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے جو اخبارات تھے ان میں میک اپ پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن آج کل ایک مکمل ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کو خوبصورت میک اپ اور لے آؤٹ ہی سب سے پہلے قاری کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا جو اخبارات ہیں جدید اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میک اپ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جنگ نے سب سے پہلے جو ہے انقلاب برپا کیا، لیکن جو باقی اخبارات تھے وہ بھی بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب ان کا جو میک اپ ہے وہ بھی بہت اچھا ہو گیا، اس پر بہت زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے۔ دوسری بات تصاویر کی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ لیتھا طریقہ طباعت کے سبب اخبارات میں تصاویر کا جو چھاپنا تھا وہ مشکل کام تھا اور اس وجہ سے ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کہ تصاویر شائع کی جائیں، مگر اب تو ہر واقعے کی تصویر لازمی ہو گئی ہے۔ پہلے تو اخبارات میں ہفتہ وار ایڈیشن میں ہی رنگین تصاویر جاری ہوتی تھیں، لیکن آج کل ہر روز ہمیں رنگین خبریں جو ہیں تصاویر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ قارئین کی توجہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اور لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ پکچرز کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں۔
अब ये देखें प्रिंटिंग कितनी अच्छी हो गई है। अब इस स्लाइड से आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। तो अ, जो प्रिंटिंग का तरीका है, पहले लेथो जो है ग्राफिक का तरीका था, लेकिन आजकल जो है ऑफसेट तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जदीद मशीनों की बदौलत एक ही वक्त में हज़ारों कापियाँ, तस्वीर और मवाद की एक साथ अशात मुमकिन हो गई है। ऑफसेट तरीका तबात की बदौलत जो अखबारात हैं, इसके जो हुस्न को चार चांद लग गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश दिखाई देते हैं। और एक और ख़ूबी जो अखबारात की नज़र आती है वो कंप्यूटर कंपोजिंग है। साइंस की तरक्की की बदौलत अब अखबारात की कंपोजिंग भी कोई मसला नहीं रहा। कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मर्ज़ी का मवाद इसमें देता है और प्रूफ रीडर पढ़कर इसको दुरुस्त करने के बाद कागज़ पर मुंतकिल कर देता है। यूँ जो काम कई कातिब पूरे दिन में सर अंजाम देते थे, वही काम जो है एक कंप्यूटर चंद घंटों में कर लेता है। एक और टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें तो जो अखबारात हैं वो बैक वक्त कई मकामात से शाया हो रहे हैं। इस सिलसिले में जो मसनू सेटेलाइट है और फैक्स है उससे मदद ली जाती है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत जंग, लाहौर, कराची और रावलपिंडी से बैक वक्त शाया हो रहा है। इसके जंग के अलावा भी बाकी बहुत सारे अखबारात हैं जो बैक वक्त मुख्तलिफ़ जगहों से शाया हो रहे हैं, जो फ़न सहाफ़त में एक काबिल कदर इजाफ़ा है। इससे पहले ये मुमकिन नहीं था। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो इदारती मौज़ूआत हैं। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जो अखबारात का मकसद था वो सिर्फ़ असूल आज़ादी ही था और यही वाहिद मौज़ू होता था और इस पर तवील इदारिये लिखे जाते थे। लेकिन आजकल ये सिलसिला जो है बदल गया है। ज़ाहिर है आज का जो इदारिया है, एडिटोरियल पेज है, वो रोज़मर्रा के हालात और वाक़यात का अहाता करता है। इसमें सियासी, मुआशी, माशरती, मज़हबी और सकाफ़ती मौज़ू पर अखबार की राय दी जाती है, जिसमें इख्तिसार होता है, लेकिन मौजूदा दौर के जो इदारियों में बहुत रंगीनी नज़र आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक वक्त में ही हम पढ़ लेते हैं। एक और चीज़ ज़बान की दुरुस्तगी। जब क्या मैं पाकिस्तान से पहले का ज़िक्र करें तो उसमें ज़बान का ख़ास ख़्याल रखा जाता था और अदबी ज़बान होती थी। लेकिन अदबी की बजाय आजकल सहाफ़ती ज़बान जो है वो इस्तेमाल होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अखबार को पढ़ सकें। आम ज़बान इस्तेमाल की जाती है इसमें। एक और चीज़, इश्तिहारात में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। हर रोज़ अखबारात में इश्तिहारात शाया होते हैं। इससे अखबारात को अच्छी आमदनी हासिल होती है। ज़ाहिर है अगर अखबारात के पास आमदनी के अच्छे मौक़े होंगे तो उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, मुलाज़मीन को भी अच्छी उजरत मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं आजकल के माशरे में और आजकल के अखबारात में हमें नज़र आती हैं। सहाफ़ियों को जो उजरत है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। पहले इतनी ज़्यादा उजरत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो है जो सहाफ़ी काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुआवज़ा दिया जाता है ताकि वो अखबार के साथ जुड़े रहें और यहाँ काम करते रहें। एक चेंज जो आया है वो पब्लिक जर्नलिज़्म का है, यानी ऐसी सहाफ़त जो कि अवाम में मकबूल हो। उसके बारे में जो तब्दीली है वो बहुत ज़्यादा आई है और जो इसकी वजह ये है कि गरीब तबके के जो दरपेश मसाइल हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अखबारात को ख़्वास की निस्बत आवाम से ज़्यादा मुंसलिक किया जाता है, जिससे इनकी इशाअत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जब भी कोई मसला होता है और जब कोई अखबार किसी मशहूर सियासतदान की राय लेता है तो वहाँ आम आदमी को नज़रअंदाज नहीं करता। रोज़नामा ख़बरें जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें अवामी रंग और अवामी सहाफ़त नज़र आती है। आम आदमी की बात की जाती है, लोगों के मसले मसाइल देखे जाते हैं।
अखबारात ने ख़बरों के पस मंज़र और पेश मंज़र बयान करने के लिए लाइब्रेरियाँ कायम की हुई हैं। इसमें डिक्शनरियाँ हैं, एटलस है, नक्शे मौजूद होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया है। दूसरा रिकॉर्ड भी इसमें महफूज होता है, और जब भी ज़रूरत पड़े किसी मसले की तशरीह करनी हो तो फ़ौरन अखबारात में उससे मुतल्लिक मवाद हासिल किया जाता है। मसलन मसला कश्मीर पर आर्टिकल लिखा जा रहा है तो बाकायदा एक हिस्सा लाइब्रेरी का मसला कश्मीर पे होगा, और लाइब्रेरी में तमाम किस्म की मवाद उसमें मौजूद होगा। फाइल्स बनी हुई होती है, कंप्यूटर में फ़ीड हुए हुए होते हैं, वहाँ से निकाल कर आप अच्छे हक़ाइक़ जो हैं वो बयान कर सकते हैं। अखबारात में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, नए लिखने वाले सामने आए हैं, नए टेक्नोलॉजी, इससे अखबारात में मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो पैदा हुई है। जब मुकाबला हो जाता है तो फिर मयार लाज़मी बात है कि वो बेहतर होता है। अखबारात नित नए तरीक़ों से क़ारीन की तवज्जो जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग तवज्जो हासिल करने के लिए मेकअप, लेआउट और मवाद की रंगीनी को मद्देनज़र रखते हैं। यही वजह है कि जो आज के अखबारात हैं उनकी अशात जो है वो लाखों तक हो गई है। बहुत सारे लोगों ने सहाफ़त को पेशे के तौर पर इख्तियार किया हुआ है, और बाकायदा इल्म है, जर्नलिज़म के बारे में पढ़ा जाता है, प्रिंट मीडिया क्या है उसके बारे में बताया जाता है। तो मीडिया और की मुख्तलिफ़ सूरतें जो हैं, हर मैदान में अखबारात ने तरक्की की है। क़ारीन का ज़ौक़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो अखबारात को बहुत अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि सब लोग अपनी पसंद की चीज़ अखबार में से हासिल कर लें। कुछ चीज़ें जो नई डेवलप हुई हैं पाकिस्तान में, डाइजेस्ट जर्नलिज़म का भी है। बहुत सारे लोग इन डाइजेस्ट में जो मवाद होता है उसको पढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ख़वातीन में जो मकबूल हैं डाइजेस्ट वग़ैरह उनको पढ़ते हैं। तो इस हवाले से भी ये चेंज आई है। आज जो हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं अखबारात में। पहला पेज तो भरा हुआ होता है, लास्ट पेज पे भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर जो सुर्ख़ी दे दी जाती है और जो बकिया होता है वो तफ़सील दरमियान के सफ़हात में दर्ज होती है, और लिखा जाता है कि जी बकिया अगले सफ़े पर, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। इस तरह जो है बहुत ज़्यादा ख़बरें होती हैं। रंगीन तस्वीर जो हैं शाया होती हैं। ब्लैक एंड वाइट तो तस्वीर बहुत कम हैं जो अखबारात में हों। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से स्टाफ रिपोर्टर्स में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, फ़ोटोग्राफ़र्स में इजाफ़ा हुआ है, सब एडिटर्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। तो ये सारे नए रुझानात थे, नई टेक्नोलॉजी थी जो कि अखबारात अपनाए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि कल की वीडियो की तरह जो कि मटीरियल के बारे में थी कि अखबारात किस किस्म का मटीरियल जो है लेकर आ रहे हैं और क्या मुकाबला चल रहा है। आज टेक्नोलॉजी है, कोशिश ये की जाती है कि तमाम अखबारात की टेक्नोलॉजी एक ही जैसी हो, कोई पीछे ना रहे। अगर कोई अखबार पीछे रह गया तो ज़ाहिर है उसकी अशात कम हो जाएगी, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो नए नए तरीके और जो अखबार का मेकअप है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उसे दिलकश बनाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।